I'll now like to welcome Sri Asim Prakash ji for his deliberation on residential status, GAR and deemed income. I'll request him to come up on the dais. I'll formally introduce Asim Prakash ji. He graduated from St. Xavier's College with a commerce degree and attained the esteemed status of a fellow chartered accountant. At ALP and Associates, a reputable CA firm in Kolkata, he leads the direct taxation wing, leveraging his extensive knowledge and experience to provide expert guidance to clients. He represents his clients before CIT Appeal and ITAT. Beyond his firm, he actively engages with the various forums as a regular speaker, sharing insights on diverse topics related to direct taxes. His role as a faculty member for CA students at ICI highlights his commitment to nurturing future professionals in the field. As a trainer for government departments, including the Income Tax Department, Asim contributes to the development of tax professionals, further cementing his reputation as a trusted authority in the industry. His involvement in the activities of the Direct Tax Committee of ICI underscores his dedication to advancing the profession through collaborative efforts and contribution to publications. His tenure at Infosys as a direct tax consultant for the Income Tax Department of India provided him with invaluable experience, particularly through his involvement in significant projects like the Centralized Processing Center in Bangalore. His role in shaping the processing rules for income tax return forms and wealth tax returns demonstrates his proactive approach and innovative thinking. He has a multifaceted expertise and commitment to excellence, continuing to make significant impact in the realm of direct taxation. I'll request everyone to kindly give a round of applause and welcome our speaker. I'll request Naresh ji to kindly come forward and present a memento to our speaker. Ek second. We'll also present him with a mug, which is marking the 65th year of ACAE. I'll now request Asim ji to kindly take the session forward. Very good evening to one and all. First of all, I want to thank IFG for having me here and giving me this opportunity to address on this occasion. And I look forward to such opportunities because such opportunities allow me to go through those nitty-gritties of the act, which generally get skipped while going through several provisions. But when one has to address the stalwarts, the professionals, chartered accountants, we can't afford to skip those nuances and nitty-gritties. So thanks a lot for giving me this opportunity to learn. On that note, the topics allotted to me is residential status, deemed income, and GAR. One major word which got missed in the should I use this mic? I'm fine. It's okay. Just okay. So another concept while covering these topics is POEM, place of effective management. I mean, these four topics of residential status, POEM, deemed income, and GAR are not normal topics which we tend to come across on daily basis. The word resident, which is the sole axis of our Income Tax Act, and in 99.9% of cases, it is freezed. पता रहता है अपने को कि भाई resident है, and will proceed, right? ठीक है. With all due respect, I am just taking you through some nuances of the residential status. Just brief cursory discussion, where 182 days is fine, 60 days and 365 days is also fine. There is a concept of 15 lakhs, which gets mentioned in the section several times. When I say several times, on two occasions. Why this 15 lakhs and what is this 15 lakhs, sir? So, there have been instances where it was witnessed by the government of India that there have been some Indian citizens who keep traveling all over the world,
maybe they have their own private jets and all, but they are not domiciled in a particular country for which they would qualify as a resident. Why this word resident is important? There's concept of citizenship when we talk about PMLA. Residency talks about taxation under Income Tax Act. So when a particular person is not taxable in any country of the world because of his travel pattern, intentionally or unintentionally, I'm not getting into that, but the way the different acts of the different country are executed, somehow he gets skipped. उस केस में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इफ यू आर एन इंडियन, इन दैट केस you are not a person taxable in any other country, and your income in India exceeds 15 lakhs, then you are a resident of India. Correct है सर? सर हैं तभी ये सेक्शन आया है. That is the first thing. So his income will be taxed in India, and he will be treated as what kind of resident? RNOR. I had mentioned that this 15 lakh is mentioned at two places in section 6. What is the other place, sir? एक तो ये क्लियर हो गया, जिसका कोई नहीं, जिसका टैक्स कहीं पे नहीं लगेगा उसका इंडिया में लगेगा. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर कोई है, एंड इफ ही कम्स टू इंडिया, करेक्ट, ऑब्वियसली ही इज नॉट इन इंडिया फॉर 182 डेज, बट वो अगर 3 महीने रह जाता है, देन व्हाट विल हैपन? 60 डेज, शुड इट ट्रिगर? उनके लिए वो सेफगार्ड आया है that if a person of Indian origin comes to India, stay in India, and his income is also exceeding 15 lakhs, then this 60 days should be read as 120 days. 60 days को आप क्वालिफाई नहीं करोगे, 120 डेज से अगर ज्यादा रहता है, then he is a normal resident of India. Are we clear with this mention of 15 lakhs at two places? सर कहने को कुछ नहीं है, कहने को बहुत कुछ है. सर आप कनाडा में बेस्ड थे, आएंगे सर, उस पे आएंगे, दैट इज ट्रिकी. एडिशनल कंडीशन है 2 साल 10 साल में और 730 दिन, 730 डेज आउट ऑफ 7 years, 2 year in 10 years, और 730 डेज इन 7 years. उस पे भी आएंगे. तो आप कनाडा में थे, सेटल्ड इन कनाडा, योर फैमिली इज इन इंडिया, यू केम टू इंडिया, यू हैव ह्यूज एफडीज इन इंडिया. उस एफडी से अगर आपकी इंटरेस्ट 15 लाख से ज़्यादा है, और आप अगर इंडिया में 60 दिन रहोगे अगर नॉर्मल केस में, तो आपको लगेगा कि यू वुड क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट. विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ROR एंड RNOR नेक्स्ट. दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन, बट देयर इज एन एक्सेप्शन गिवन टू यू that since you are an Indian person of Indian origin, in that case the 60 days word should be read as 120 days. तो सर आप 4 महीने तक रह सकते हो, तब तक तो कोई बात नहीं है. 4 महीने से अगर ऊपर जाते हो, 182 डेज के विद इन हो, उस केस में एक और कंडीशन ट्रिगर करेगा. क्या कंडीशन ट्रिगर करेगा? 15 lakhs. 15 lakhs. If your income is exceeding 15 lakhs, then again you qualify as resident. Are we clear till here?
सर वहां के लिए टाई ब्रेकर रूल है, बहुत सारा कुछ है, कैनेडियन टैक्सेशन भी आएगा. अब एक और कॉन्सेप्ट है ROR एंड RNOR. What, which is the only section which talks about this concept of ROR and RNOR? टैक्सेशन में क्या डिफरेंस है सर? RNOR एंड नॉन रेसिडेंट को कंपेयर करते हैं, ROR एंड RNOR तो फिर भी ठीक है, क्या डिफरेंस है? We have three categories: resident and ordinary resident, resident and not ordinary resident, and a non-resident. We have three classes of residency in India. What is the difference of taxation for these three classes of SSCs? This is the question to the audience. Global income. Very good, sir. Second case. करेक्ट. किस सेक्शन में लिखा हुआ है सर? 7. एकमात्र सेक्शन है 7 जहां पे एक क्लैरिटी दी गई है अबाउट द टैक्सेशन ऑफ रेसिडेंसी कि इफ यू आर RNOR तो क्या होगा आपके साथ, क्या डिफरेंस है सर? इफ यू आर एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, आई हैव गॉट माई बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, my global income will be taxed in India. Now, I was based in Canada. I came to India. I stayed in India for 5 months. 5 months. My income exceeded 15 lakhs. My income exceeded 15 lakhs. Prima facie, I am a resident. Looks like RNOR. Now I have my businesses all over the world. I have a HUF which has got its businesses in Canada. I have got a HUF which has its businesses in Canada. Now this example will give a crystal clear understanding of RNOR. HUF is within the jurisdiction of, sir, HUF is the jurisdiction of Calcutta. I mean, not Calcutta, India. We are not getting into that part because if you'll see, this is a separate entity. If this entity is a part of some other entity where it has got major stakes and it is treated as that it is the sole owner, there might be different kind of, arrangements there. Because the kind of concept we have in India like LLP or private owned company, Dubai does not have that kind of concept. Correct? Had the HUF been in India, then it would have claimed the status of a non-resident based on the Karta. Residency of Karta, that is what I am trying to say. But then the question of poem starts again. Sir, that's what I am telling. That is the sole reason I am telling that now as a Karta, I am a resident. I am not a resident. Matlab, for this limited purpose, I am a resident. Now this business is being controlled from India. Now my global income will not be taxed in India. Whatever businesses I have all over the world, that income will not be taxed in India. But for this HUF, this income will be taxed in India. For sir, what is the taxation? What is the residency? How the residential status of HUF is freezed? How is it? Karta की residency पे depend करता है. Management, control, and the word is control and management. The word is control and management. Correct है sir? HUF में अगर ठीक है, HUF में अगर थोड़ा सा भी लीगल बैटल लग रहा है सर, लेट्स कंसीडर अ सोल प्रोप्राइटरशिप रनिंग फ्रॉम हियर. अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, देन ऑल्सो रेसिडेंशियल स्टेटस है,
तो what I'm trying to say is कि when we read this RNOR का concept, the main concept is business is being controlled from India. In that case, for the sake of RNOR, that particular business will be taxed in India. Global income will not be taxed, only to the extent of income which is earned from business being controlled from India. But can poem be invoked just based on change of status? I'll come to poem, sir. I'll come to poem. Poem तो सर पहले सिर्फ पोएम किन के लिए एप्लीकेबल है सर? कि विच क्लास ऑफ एसएससीज? पोएम किसके लिए एप्लीकेबल है? पोएम कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है. पोएम किन के लिए एप्लीकेबल है? किन के लिए एप्लीकेबल है? कंपनीज के लिए. पोएम के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है सर? क्या होना चाहिए टर्नओवर? क्या मेरी एक कंपनी है छोटी सी दुबई में, चले एक टैक्स, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है. पोएम के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 करोड़ का. तो सर 50 करोड़ इज अ बिग अमाउंट. तो फॉर आई मीन लुक वट एवर जो 3-4 टॉपिक मिली है सर, बहुत इंटर रिलेटेड है. आई विल ट्राई टू डू जस्टिस टू ऑल दोज टॉपिक्स इन माई लिमिटेड कैपेसिटी. नहीं सर, बहुत बड़ी टॉपिक है सर. ने तो पहले रेसिडेंसी समझते हैं सर. रेसिडेंसी में सर है, आई शेयर विद आयुष, ही विल शेयर इट विद एवरीवन. तो 15 लाख जो रेसिडेंसी में मेन कॉन्सेप्ट है सर कि 182 डेज, 60 डेज, 365 डेज एंड एडिशनल कंडीशन है 2 years in 10 years एंड 730 डेज इन 7 years. तो ये अगर फॉलो होता है तो ठीक है. रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कॉन्सेप्ट आता है RNOR का, जो मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो जिसके ऊपर कहीं भी टैक्स नहीं लगता है, इंडियन ओरिजिन का है और 15 लाख से अधिक उसकी इनकम है, इन दैट केस इट बिकम्स RNOR. तो उस केस में भी मेरे बाकी के जो बिजनेसेस हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. जो बिजनेसेस मेरे इंडिया में हैं तो सर मेरे ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा. सो ऑब्वियसली if I am not a resident of any other country of the world, government of India should not be concerned about my global income. They should be concerned about my income which is accrued in India, arises in India or deemed to arise in India. यह रेसिडेंसी का मेन कॉन्सेप्ट है सर. एक बहुत बड़ा मसला हुआ था 2012 में डीमिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के. तो अच्छा, हैज एनीवन of you gone through a circular relating to residential status issued by CBDT? कभी कोई सर्कुलर देखा सर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पे? डीम्ड वाला नहीं सर, नॉर्मल रेसिडेंशियल स्टेटस. इसमें ड्यूरिंग कोविड की क्लैरिफिकेशन में आया था ये कॉन्सेप्ट कि हम इंडिया आ गए, फंस गए, हम वहां चले गए, फंस गए, तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ माय रेसिडेंसी? Am I going to get taxed because of my residential status due to this COVID thing? Is it going to change? So most of the countries came up with liberal and extended their number of days. And accordingly, India also came up with a circular. CBDT came up with a circular. It is circular number 2 of 2021. So it did not only cover the different scenarios which fell under this COVID scenario, but also gave a clarity of the residency. इसमें इन्होंने टाई ब्रेकर रूल की बात की है. हम लोग सर 2-4 टॉपिक्स पे बहुत डीप डेप्थ में जाएंगे क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी है. पोएम की बात करेंगे, DTAA आएगा, MLI आएगा, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, फिर हम लोग डीम्ड इनकम की बात करेंगे, FTS की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको DTAA आएगा. गार की बात करेंगे, वहाँ पे भी DTAA आएगा. क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंशियल स्टेटस और नॉर्मल टैक्सेबिलिटी की बात नहीं है. तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंटेंशंस चल रहे हैं. किसी भी व्यक्ति पे जो इनकम इंडिया में नहीं आ रहा है, अगर उस पर टैक्स लगाएगा तो वहाँ पे लिटिगेशन होगा.
So most of, I mean, many things have settled. Many things get settled day to day. We have got diverse judgments. So this is a good circular which everyone present here, and I mean everyone as a professional should go through, which talks about the residential concept. Circular number 2 of 2021 सर. टाई ब्रेकर का कॉन्सेप्ट होता है DTAA में. क्या कॉन्सेप्ट है सर? एक ऐसा सिनेरियो जहां पे दो कंट्रीज आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं कहां का रेसिडेंट हूं. करेक्ट है? तो इसमें प्रेफरेंस होता है. 4 प्रेफरेंस की बात होती है. पहली प्रेफरेंस है सर, आई एम जस्ट कोटिंग, whereby this is a extract of Indo-US DTAA. They have preferred to take it US DTAA, but it again depends कि आपकी किस कंट्री से which is the other contracting country, and you have to go through the respective DTAA. So in this particular circular, they have referred to US DTAA, where I am quoting Article 4(2), where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both contracting states, then his status shall be determined as follows. He shall be deemed to a resident of the state in which he has a permanent home available to him. Permanent home, first preference. If he has a permanent home available to him in both, he shall be deemed to a resident of the state with which his personal and economic relations are closer. Center of vital interest बोलते हैं सर इसको. तो सर अभी सुनने में ये सारे टर्म्स इंग्लिश के टर्म्स लगते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में एवरीथिंग हैज गॉट एन इंटरप्रिटेशन. होम, देन ही शैल बी डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ स्टेट. पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है, इसकी भी तो डेफिनेशन होनी चाहिए. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रेफरेंस, कि ये भी अगर दोनों जगह है और यह पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पे है. If the state in which he has a center of vital interest cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either state, there can be a scenario. He shall be deemed to a resident of the state in which he has an habitual abode. जहां पे प्राय रहता है. Habitual abode it is talking about. I am quoting DTAA, sir. Third preference. If he has an habitual abode in both states, or in neither of them, he shall be deemed to be resident of the state of which he is a national. Passport कहां का है? If he is a national of both states or of neither of them, हमारे यहां पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं सर, ऐसा हो सकता है उनके साथ भी. The competent authorities of the contracting states shall settle the question by mutual agreement. It is called MAP, Mutual Agreement Procedure. तो सर छोटी सी कॉन्सेप्ट है रेसिडेंसी, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. इंटर का कॉन्सेप्ट है सर, और DTAAs आ जाते हैं, इंटरनेशनल लिटिगेशन हो जाती है रेसिडेंसी पे. So this was the tiebreaker rule what I just discussed. This is called tiebreaker rule, and this is very important. So whatever we are discussing, sir, if someone approaches you कि भाई this is the scenario, एक बंदा है फॉरेन का, तो जनरली आप सिर्फ सुपरफिशियल या प्रामा फेसाई चीज़ों पे मत जाइए. देयर माइट बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट. आप चार्जेस ले लो, रिटन लीगल ओपिनियन दो सर, बट इन सारे एस्पेक्ट्स को देख करके दीजिए, क्योंकि सिंपल इंटरप्रिटेशन में बी डिफरेंट, बट व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ, थिंग्स टर्न टू बी डिफरेंट. So that was my humble submission, and we have very limited document as far as residency is concerned in the public domain. So this is a circular which I could find, and any of section is there. So ये दोनों है sir. Coming to the another global concept, poem जो है sir, poem is not domestic concept. एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट.
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसने भी एक्सेप्ट किया है पोएम को. This concept of taxation, it has got two ways to tax: residency rule and source rule. या तो आपको जहां से पैसा मिल रहा है वो टैक्स कर लेगा, या जिसको पैसा मिल रहा है वो जहां का रेसिडेंट है उसकी कंट्री टैक्स करेगी. यही दो ऑप्शन है टैक्सेशन में. तो with this new concept and new arrangements, advancement and development and the advent of tax havens, Cayman Island है, बहुत सारी ऐसी countries है, shell entities है, conduits है, जो different kind of arrangements हो रही हैं, and जिसके कारण MNCs and HNIs, they tend to, I could have said plan but evade taxes. So for that concept, to counter that, the concept of poem has been brought into place. What is this concept of poem, sir? Place of किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनीज के ऊपर. पोएम के लिए एक बाइबल है, सर्कुलर नंबर 6 of 2017. क्योंकि एक्ट में ऑलमोस्ट नथिंग हैज बीन रिटन अबाउट पोएम. सर्कुलर नंबर 6 of 2017. It covers all the aspects about poem. What is the intention of the legislation? How they want to roll it out? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो मेन बॉटलनेक था सर, वो ये था कि जिन कंपनीज के पैसे इंडिया में ओरिजिन हो रहे हैं उनका टैक्स इंडिया में लगना चाहिए. एक कॉन्सेप्ट होता है BEPS. क्या होता है? प्रॉफिट शिफ्टिंग. तो BEPS का शिकार इंडिया ना बने, बेस को इरोड करके प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं जो भी आपके टैक्स हेवेंस हैं वहां पे. एक क्लासिक एग्जांपल है सर, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी कंपनीज, बट मोस्ट ऑफ द MNCs, स्पेशली टेक, वो क्या करते हैं, अपनी IP राइट्स, टेक के लिए पावरफुल क्या है? IP. वो अगर अपनी IP राइट्स एक ऐसे कंट्री में रजिस्टर करेंगे जहां पे टैक्स है ही नहीं, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी उनके इनकम आ रहे हैं वहां पे, इफ दे विल बुक एन एक्सपेंस एंड दे विल से कि लुक, whatever I am earning, this is because of my tech and IP. And this IP is being owned by an entity which is registered in Cayman Island. So obviously whatever I am earning, the majority of the revenue will go to that entity. Sounds reasonable, right? And that is how it is happening, and they will shift their entire revenue to that particular country. So very minimal profit is left with the country where actual business is happening. करेक्ट है सर? तो इस तरह से क्या हो, बेस इरोड हो गया, प्रॉफिट शिफ्ट हो गया, और ये जो मेजर प्रॉफिट है वो केमैन के पास चला गया. केमैन ने क्या बोला कि यस, आई हैड डन सम R&D which I am showing, and whatever is there, that is my profit, because lot of talent was required for this, and whatever is there, that is my profit, and that is, since I am registered in a country where there is no tax, I can't help it. So this is how it is happening. Now this concept of poem says कि सर ऐसे नहीं होगा. Who is calling the shots of the management? कौन मैनेज कर रही है कंपनी को? मार्क जकरबर्ग अगर मैनेज कर रहा है, where does he reside? I'm just giving a hypothetical example. It has nothing to do with the actual facts. XYZ is managing the company. So the concept is कि वो बंदा कहाँ है जो कंपनी के लिए मैनेजमेंट कर रहा है, कंपनी के डिसीजंस ले रहा है, उसके CEOs हैं, CFOs हैं, उसके मेन डायरेक्टर्स हैं, उनकी रेसिडेंसी कहाँ है?
तो अगेन लूप होल्स आर देयर सर. जैसे बहुत बार कही जाती है कि मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कहाँ हो रही है, बोर्ड मीटिंग्स कहाँ हो रही है ये बताओ. तो आई एम गिविंग एग्जाम्पल. सपोज अ पर्सन floats a company in Dubai. Both the Indians who are the owners of the companies, they reside in India. That company is into real estate. They are doing their businesses there. Whatever taxes, if at all, 8-9%, above 3,50,000 वो जो है उनका लिमिट 70-80 लाख का, उसके ऊपर जो आता है दे पे टैक्सेस. फॉर दैट कंपनी द एंटायर थिंग इज बीइंग मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया, बट दैट इज नॉट अ कंपनी रजिस्टर्ड in India. It has got no existence, but all the management decisions are being taken from India. Here poem plays an important role, crucial role. Is it taxable in India now, sir? उस कंपनी की जो प्रॉफिट्स है क्या वो टैक्सेबल है इंडिया में? टैक्सेबल है क्या इंडिया में? प्राइम एफएसआई लग नहीं रहा है सर, प्राइम एफएसआई लग नहीं रहा है, बट टैक्सेबल है. कॉन्सेप्ट होता है एबीओआई, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. अगर आप वास्तविकता में प्रूव कर सकते हो कि यू हैव द इंटेंशन टू डू बिजनेस आउटसाइड इंडिया and you are actively doing business outside India, then you can get the waiver. Otherwise it's a sham. This entire arrangement has been done to evade the tax. 50 crore sir, rule number 10. सर अभी तो उस पे आएंगे सर, तभी मैं बोल रहा था कि whether I am being recorded or not. That was the reason I asked. सो 50 करोड़ तक के लिए सर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ये 50 करोड़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वोडाफोन एंड ऑल, अभी सर सेक्शन 9 में हम घुसे भी नहीं है, अभी आई एम स्टिल इनटू दिस पोएम ओनली. अभी सेक्शन 9 में जाएंगे सर, डीम्ड इनकम में, वोडाफोन में जाएंगे, जीवीके में जाएंगे, केस लॉज हैं इतने सारे. तो 50 करोड़ का है सर. पोएम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज प्राइम एफएसआई हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स स्पेशली कैलकाटा में हु हैव गॉट प्रॉपर्टीज इन दुबई. व्हाई हैव ब्रॉट दिस टॉपिक एंड स्पेशली फॉर दुबई फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव सर. आरबीआई की कंप्लायंसेज होती है, एलआरएस बोल के कोई कॉन्सेप्ट होता है, आरबीआई के फॉर्म्स होते हैं. इफ यू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया प्लीज कंप्लाई विद दैट. भर भर के नोटिसेज आ रही है. देयर विल बी टू अथॉरिटीज व्हिच विल डिस्टर्ब यू, नॉट ओनली इनकम टैक्स बट आरबीआई एज वेल. And the story will not end there only. We have something called Black Money Act, और उसमें कंपाउंडिंग नहीं है सर, जेल का प्रावधान है. हालांकि जो लिमिट है वो 20 लाख की लिमिट है कि you have to disclose this in your ITR as well. Please look into this aspect of your clients, that if they have, they have even thought about investing in Dubai or they have already invested in Dubai, make sure it is done through legitimate route, because दुबई में सर जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है दे आर गोइंग टू शेयर एवरीथिंग. दुबई के शेख अबू धाबी में जब मंदिर हुआ था सर, अपने सर पे भगवान राम की मूर्ति लेके गए थे. तो मोदी जी से संबंध बहुत अच्छे हैं, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा था. तो आप उन पे भरोसा मत करो, कह रहे नहीं ठीक है, कौन बताएगा. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विल हैपन एंड इट इज हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नोटिसेस. So that is my humble submission, that if you have got your clients who have got their companies floated in Dubai, and if they think that they will act like an ostrich, this ostrich effect will not work here. आँख बंद करने से दुर्घटना नहीं बचेगी सर. That is where poem will come into play. Poem is very important concept. Active business outside India है कि नहीं, आपको establish करना पड़ेगा. 50% आपके revenues कहाँ से हैं, आपकी जो employment है वो कहाँ से आ रही है, assets कहाँ हैं आपके, पेरोल कितना है, पैसिव इनकम कितना है, ये सब 50% से एक्सीड होना चाहिए. देन ओनली देर इज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. यू कैन नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के लिए सर बात कर सकते हैं, वो अलग बात है. बोर्ड मीटिंग्स हो सकती है ऑन पेपर,
मतलब दैट इज समथिंग विच कैन बी डिस्कस्ड, बट थोड़ा सा एहतियात बरतना होगा. यू हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियस व्हाइल डूइंग ऑल दिस. नहीं बट ये पेरोल वाला क्वेश्चन था. हाँ, सर. मान लीजिए पेरोल नहीं है बट सारे जो मीटिंग्स होते हैं वो वहीं फॉरेन लैंड में ही होते हैं. पेरोल्स क्रिएट कर दीजिए. Just stop the record. Just stop. Hey, let's understand, because we all are professionals here. If it has got certain conditions 1, 2, 3, 4, and you know that you are already inviting trouble, because you know it when you know it. So why not tick all the boxes when you know it? कि ये सवालों पे बात होनी है तुम्हें इस सवाल के लिए. When it is well in advance, you know about it. Otherwise it's a different ball game altogether, you know. बाद में तो आप कुछ नहीं कर सकते सर. बैंक में थोड़ी एम्प्लॉइज दिखाओगे. अगर पेमेंट हो सकता है तो कर दो. People get advised to move to Dubai, which I have noticed. But just because of the limit of the AGOI, things doesn't apply. सर 50 करोड़ की लिमिट है तो ठीक है. मतलब मेजॉरिटी एक तरह से जो है अभी कैलकाटा मार्केट के लिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुंबई एंड बैंगलोर. What I have witnessed is the consultants are very confident over that, but ultimately I made them to disclose the holding in the. नहीं, आप देखिए सर, कुछ चीज़ों को तो बिल्कुल ही मत करो. आप 50 करोड़ में पोएम नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज फाइन. टैक्स नहीं लगेगा. यू कैन डंप योर प्रॉफिट्स देयर टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 50 करोड़ एंड ऑल, क्योंकि इट इज नॉट एक्सीडिंग. बट एक शेड्यूल होता है ITR में, FA, disclose it there, whatever holdings you have, your bank details. So One more thing is your circular having a GAR limit on tax amount plus this. I'll come to that, sir. I'll come to that. टैक्स इफेक्ट की बात होती है. गार पे चलें कि डीम्ड इनकम पे चलते हैं सर? पहले डीम्ड पोएम हो गया, रेसिडेंसी हो गया. अब आई जस्ट कम टू डीम्ड इनकम. This is section 9. In Income Tax Act, generally we say that this is not English, stop dreaming, talk about facts. But ये section बोलता है नहीं, थोड़ा सा तो by stretch of imagination we can talk. थोड़ा imagine करके बात करेंगे. That is why the word deemed is there. मान लें, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी डिपार्टमेंट को लीवे दे रहा है मानने के लिए. इतने सारे जजमेंट्स आ गए. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 9 is about incomes which prima facie look like that they are not incomes of Indian origin. They should not be taxed in India. For example, you are paying to a person residing in Singapore for the services given in Singapore and given in India. Will those be treated differently? प्राइमा फेसाई लगेगा सर. सेमी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? या तो टैक्स लगेगा या तो नहीं लगेगा. आर वी ऑन द सेम पेज? यू आर गिविंग पेमेंट टू अ पार्टी एक्स इन सिंगापुर. सिंगापुर की जो पार्टी है वो आपको 2 कैटेगरीज ऑफ सर्विस दे रही है सर. एक वो सेल्स जनरेट कर रही है सिंगापुर में और वो लीड्स जनरेट कर रही है इंडिया में. व्हाट शुड बी द टैक्सेशन? अपना तो पेमेंट सिंगल जाएगा. प्राइमा फेसा ये लग रहा है फॉरेन का आदमी है, क्या टैक्स देना, उसका तो इंडिया में कुछ है ही नहीं. इंडिया में पी है नहीं है, कुछ नहीं है. फिर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? procuring order in India for export or for local. अभी तो सर ये सब सवाल तो सोचे नहीं थे ना सर. आप सोचना अभी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है सेक्शन 9 का, डीम्ड का, तो हम लोग सोचने के लिए विवश हो गए कि ठीक है, नाउ वी आर बाउंड टू थिंक इन दीज डायरेक्शंस. बट प्राइमा फेसा इफ द क्लाइंट कॉल्स एंड सेज कि सर सिंगापुर की पार्टी है, पेमेंट कर दें क्या? हाँ कर दीजिए. बोला माल लिए थे, बोला हाँ ले कर दीजिए, इंपोर्ट में तो कुछ है नहीं, कर दीजिए. करेक्ट है ना सर? ऐसा ही होता है सर. इतना आसान तो नहीं है. 15 CACB क्या है? तो 15 CACB का सिर्फ 15 CACB के लिए फीस नहीं मिलती है. हम लोगों से लीगल ओपिनियन लेना चाहिए हर पेमेंट के लिए. एंड आई जेन्युइनली गिव इट एवरी टाइम. बोले भाई आपको खुद से करना है कर लो, हम तो लीगल ओपिनियन है, हम एग्जामिन ही नहीं करेंगे तो हम बताएंगे कैसे कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा.
आप तो बोल रहे हैं, आप तो गंगा में खड़ा हो कि आज तक सर इंडिया में जिसके ऊपर भी असेसमेंट चल रहा है, किसी से भी पूछ लो, माँ गंगा में खड़े होकर बोलेंगे सर हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, असेसमेंट तो ऐसे ही चल रहा है। तो वो तो ऐसे सर पेमेंट, सर मेरा माल नहीं आएगा, माल रुक जाएगा, पेमेंट नहीं जाएगा, तो पेमेंट कर दीजिए, फिर आप मेरे पास क्यों आए फिर? आई विल एग्जामिन द ट्रांजैक्शन, आई विल एग्जामिन द इनवॉइस, आई विल एग्जामिन योर अग्रीमेंट, ओनली देन आई कैन टेक अ कॉल। और वो कॉल मेरा ओरल नहीं रहेगा, आई विल गिव अ लीगल ओपिनियन टू यू। क्या क्या देखना पड़ेगा लीगल ओपिनियन में सर? लीगल ओपिनियन वाल एग्जामिन सेक्शन 9, आई विल एग्जामिन सेक्शन 5 कि स्कोप ऑफ इनकम क्या है, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट। टैक्सेबिलिटी अगर आती है इंडिया में तो टीडीएस काटना है तो किस रेट पे काटना है, कैसे काटना है, व्हाट डज डीटीडब्ल्यूए टॉक अबाउट? डज डीटीडब्ल्यूए ओवरराइड सेक्शन 9? Yes. Does GAR override DTAA? Yes. पहली बार कुछ आया है सर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में जो बोलता है कि मैं DTAA से भी ऊपर हूं, वो है गार। और एक हाईकोर्ट है सर हमारी कंट्री में जिन्होंने ही जजमेंट्स दिए, मैंने और किसी हाईकोर्ट की जजमेंट पढ़ी नहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट, 2 जजमेंट्स दे दिया उन्होंने गार पे, एक एसएससी के फेवर में, एक डिपार्टमेंट के फेवर में। सो वट एवर आई एम डिस्कसिंग एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। और ये जो इंटर रिलेशन की बात करें सर, नॉर्मल टैक्सेशन में नहीं आता है, बट रेसिडेंसी है, पोएम है, फिर अभी जो डीम्ड इनकम की बात है। तो सर अभी मैं बोला था कि पेमेंट हैज बीन डन टू अ पर्सन वेंडर इन सिंगापुर फॉर प्रोवाइडिंग 2 kinds of services. One, he is generating sales in Singapore, other he is generating leads in India. सर उसके पेमेंट के 2 legs हैं। फॉर वट एवर सर्विसेज ही हैज बिन प्रोवाइडिंग इन इंडिया जनरेटिंग लीड्स, उसको वो सेग्रीगेट करना होगा, उस पर टीडीएस लगेगा। जो लीड्स वो वहां जनरेट कर रहा है उसके लिए टीडीएस नहीं है। इसके लिए सर एक बहुत बढ़िया किताब है, आल्मा मैटर ने रिलीज की है, हमारी आईसीआई ने, गाइडेंस नोट ऑन 92 ही नहीं सर, एफटीएस रॉयल्टीज, इस पे है, स्पेशल गाइडेंस नोट है, इसको पढ़िए। और 15 CSCB का पेमेंट अगर आता है, इस तरह की फॉरेन पेमेंट्स आती है, प्लीज गो थ्रू इट, एग्जामिन इट। और फ्री में एग्जामिन मत करिए सर, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, पहले सेक्शन 9 को समझना है। अभी कहानी तो सर शुरू भी नहीं है, तो हुआ सिर्फ टैक्सेशन की बात। सपोज आई टेल यू कि हाँ पेमेंट कर दीजिए, टीडीएस कटेगा, फोन तो रख दिया, टीडीएस कटेगा। सर कैसे कटेगा, किस सेक्शन में, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है टीडीएस कटेगा और कैसे कटेगा? 195 में काट लीजिए 20%। वो बोल रहा है सर सिंगापुर वाली पार्टी से बात है, टीडीएस वीडीएस जो देना हम ही को देना है, वो तो नेट पेमेंट लेगा, अब क्या करना है बताइए? बोला अच्छा रुको पढ़ते हैं फिर से, 20% टीडीएस तो नहीं कटवाएगा वो। बोला अच्छा ठीक है, डीटीडब्ल्यूए में 10% कहीं पढ़े थे। बोला ठीक है 10% काट लो। बोला सर फिर? बोला सर पैन नहीं है, क्या करें अब? बोला अरे अब क्या फिर से 20% क्या? अरे सर बता, वी आर जस्ट डिस्कसिंग राइट, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं सर, दिस इज कंप्लीटली टेक्निकल टॉपिक, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक इट जितना समझ सकते हैं हम लोग कि जो हमारे डे टू डे में काम आए। But DTAA rate cannot be decided by deductor. So the industry has to take the option of getting that rate. कैसे सर? जैसे 195 में आप जब TDS काटोगे, डिडक्ट एट स्पेसिफाइड रेट। नहीं सर यही तो बता, इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं सर। मैंने तो पहले ही बोला कि एक्ट और डीटीडब्ल्यूए में कौन ओवरराइड करेगा? DTAA will override, but that person who is affected by the DTAA. सपोज सर आई एम द पर्सन इन सिंगापुर, मैं बोलूंगा कि भाई साहब हमारे देश में और आपके देश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, मैं उसी को जानता हूं। Agreed, but in that case you have to file return in India. नो नो नो, आई विल कम टू दैट सर, तभी तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस कि दिस इज नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ पर्सन रिसाइडिंग इन सिंगापुर, आई एम डूइंग बिजनेस इन इंडिया, विल आई इवन गिव अ डैम टू योर इनकम टैक्स एक्ट? शुड आई? What is the Bible for me for doing business with you? I'll go by DTAA. You can mention section 195 and all. What I will mention is article. Let me see under which article I am falling. And as per that article, what is the rate of tax? And whether that is taxable in India at all or not, that I will also decide.
if that also gives, because ultimately you as a professional will take this call that nahi, this is taxable in India because this is the contracting state and the source is here, and service is also being provided in India for that specific percentage where leads are being generated in India. That's why I gave you this example. That's not that simple. Are you getting what I'm trying to say? Can you just explain by, say, hypothetical example, Booking.com, they don't have a, I'm just naming, taking a name, Booking.com. They don't have a P in India, and they are generating leads in India, right? So, will they be taxed or? सर ये इतना भी आसान नहीं है. देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसीपी. अब सर क्योंकि अब आपकी क्वेरीज डिटेल्ड आ रही है तो आई एम ऑल्सो गेटिंग इनटू द डिटेल. नहीं नहीं, दिस इज अ डिटेल्ड क्वेश्चन सर. आपने जो एक सवाल छेड़ा है सर, छोटा सवाल नहीं है वो. जो बता रहे थे, मतलब generating leads in India, मैं उससे करेक्ट, यस सर, उसी पे मैं बता रहा हूं कि अब एक कॉन्सेप्ट होता है एसीपी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. इसकी जो मदर वर्ड है वो मदर वर्ड है बिजनेस कनेक्शन. एसीपी बात करती है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन 2 करोड़ से अधिक का हो रहा है, ट्रांजैक्शन 2 करोड़ से ज्यादा का हो रहा है, in that case you are treated as an entity which has significant economic presence in India. And or I mean आपके केस में if lead generation and data generation is there, the number exceeds 3 lakhs, the number exceeds, then you are deemed to be an entity which has got significant economic presence in India. In that case also, your income will be deemed to be arise in India. अभी तो सर सिंपल मैटर की बात कर रहे थे कि ये जो मैटर है यहाँ पे पेमेंट आपने इंडियन वाले काउंटर पार्ट के लिए जब आप कर रहे हो तो पहला सवाल ये है कि टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा. चलो आई गिव यू द क्लैरिटी दैट इफ यूल गो थ्रू द सेक्शन 9 and several judicial precedents are there and guidance note on FTS royalty, you will get to this concept that okay fine, this is taxable to the extent whatever services and leads are generated in India. Next question is, what is the rate of TDS? As sir says 195 for me, why will I listen to him? But DTAA will override 195. So again DTAA, now DTAA will say ki fine 10%, but again there is no PAN 206 AA. ऐसा क्या? फिर 20%. बोला सर हम तो DTAA के पास गए थे, वो बोला कि ठीक है 10% काटो, पैन नहीं है, अब हम क्या करें? बोलो उसको तो पैन चाहिए नहीं. और ये खर्चा किसको उठाना है? टीडीएस वाला, आपके पार्टी को, आपके क्लाइंट को. नहीं तो सर आपका जीवन इतना मुश्किल थोड़ी होता. ये 10% तो उसके लिए 110 का खर्चा है या 120 का जो आप बनाओगे. Section 206 AA also gives a relief कि if it falls for royalty FTS, in that case, if the other party gives a TRC, tax residency certificate अगर दे देता है, in that case 20% is not applicable. जो आपका DTAA कर रहा है उस पर आप डिडक्ट करो और आगे बढ़ो. करेक्ट है सर? तो ये कहानी है. रेट पे, उस रेट पे टीआरसी रहेगा उनका, उनकी टीआरसी रहेगी. नॉन रेसिडेंट के लिए कौन सा पेमेंट जाता है और फिर फॉर्म कौन सा जाता है? यस मैम, क्लैरिटी आ गई. थोड़ा सा अगर लॉजिकल ब्रेक करेंगे क्वेश्चंस को तो आंसर मिल जाएगा. ठीक है. रूल कौन सा है सर? रूल 37 मेरे ख्याल से बीसी में है. बीसी इज देयर. So that was the case when deemed income is there and
आर्टिकल वाइज भी सर एक बार कंपेयर करना जरूरी है सेक्शन 9 को, क्योंकि सेक्शन 9 इज अ वाइड सेक्शन, बिग सेक्शन, वेयर वी टॉक अबाउट business connection, significant economic presence. What is the concept? क्यों सेक्शन 9 आया सर? और 2012 में ऐसा क्या हुआ कि सभी कुछ सेक्शन 9 के अराउंड घूमने लगी पूरी बातचीत? वोडाफोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट went a step ahead and said कि एक एसेट, एक एंटिटी विच derives इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स प्रेजेंस इन इंडिया, यहाँ पे उसके एसेट्स है, सब कुछ है, और इसको कोई और ओन कर रहा है, कॉन्डुइट एंड शेल एंटिटी, और उस एंटिटी के अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है जो केमन आइलैंड में बैठी हुई है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे सर इसमें? हच और वोडाफोन. हच वॉज गेटिंग ट्रांसफर टू वोडाफोन एंड हच वॉज बीइंग ओन्ड बाय अ कंपनी इन Cayman Island and the ownership of that company was being transferred to Vodafone, जिसमें यह बात हुई कि मैंने हच को तो टच ही नहीं किया, हच इंडिया को तो मैंने टच ही नहीं किया. Where is the concept of taxation? Then department came up with this concept कि आपने टच नहीं किया तो क्या, जो वैल्यू डिराइव हो रही है हच केमैन की, वो वैल्यू तो इंडियन कंपनी से डिराइव हो रही है. That's why this entire transaction is taxable in India. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सर? किसके फेवर में दिया? वोडाफोन के फेवर में. रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया गया सर, बट जैसे रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड है वैसे टैक्स टेररिज्म भी वर्ड है, क्या कर सकते हैं? तो कर ही सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. जजमेंट भी है, लीवे भी दिया जाता है सर. तो उसमें तो देखिए प्रॉब्लम है कि अब जुडिशियल सिस्टम है, सब कुछ है, तो सर उस पर एक कार्यविधि है, उसी के अनुसार सबको चलना है कॉन्स्टिट्यूशन में. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दिस इज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इनकम टैक्स एक्ट कि इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी, इफ यू हैव एन एंटिटी विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, which derives its value from its presence in India and through shell entity and conduits and different arrangements, if the ownership is being tried to concealed and somehow ownership is being transferred of that particular entity, in that case also Indian government will ask for taxes. तो ये सर, तो 3 केस है सर, इंपॉर्टेंट केस लॉज इस पूरे डिस्कशन में. एक कॉन्सेप्ट था मैकडॉवेल का, जब उन्होंने कहा कलरेबल डिवाइस देकर के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी अरेंजमेंट को. सो गार के पहले कॉन्सेप्ट था जार का. व्हाट इज गार? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स. वैसे जुडिशियल एंटी अवॉइडेंस रूल्स थे कि आप कोई अरेंजमेंट जहां पे कोई बिजनेस सेंस ही नहीं है, कोई आर्म लेंथ ही नहीं है, a man who is rational enough and who has got sufficient business acumen will never do such kind of transaction, but still you are doing it, and the sole purpose is to get tax benefit. That is where jar used to come into play. Now we have gar. एक concept होता है सार, specific anti avoidance rule, जैसे कि और जो भी सेक्शन वो सार में आते हैं, गार में जनरल आते हैं. तो दिस इज द रिवर्स इवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. होता क्या है, जहां पे कुछ नहीं लिखा होता वहां पे बोलते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट लगा दो. तो जनरल एक्ट पहले बनता है, बाद में स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं हम. इनकम टैक्स एक्ट रिवर्स इवोल्यूशन किया. उन्होंने पहले स्पेसिफिक प्लग किए, फिर बोला स्पेसिफिक प्लग नहीं कर पा रहे, एक जनरल बना दो. इसी पे बात हुई थी जो तेलंगाना का जजमेंट आया था. एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज़ादी बचाओ आंदोलन आया सर 2003 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसमें मॉरिशस के साथ जो DTAA था उस पर बातचीत हुई. आज़ादी बचाओ आंदोलन ने बोला कि इस तरह से किसी हमारे देश के कानून की धज्जी नहीं उड़ा सकता है. मॉरिशस रूट के थ्रू बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका सिर्फ मुख्य रूप से यही उनकी इच्छा है कि टैक्स का बेनिफिट लिया जाए, कोई बिजनेस सेंस नहीं है. बट सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गो फॉर इट. बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है. इफ DTAA इज देयर इट विल ओवरराइड.
आपको चेंजेस लाने हैं तो आप प्रोसेसेस में चेंजेस लाओ, एक्ट में चेंजेस लाओ, DTAA में चेंजेस लाओ. इट कैन नॉट गो अगेंस्ट द DTAA बिकॉज ऑब्वियसली एवरी लॉ विल हैव सम लूप होल. तो लॉ हैज टू बी चेंज. यू कैन नॉट से कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप लॉ को ठीक करो. और वोडाफोन इसी लाइन में आती है. I have these list of judgments which I'll share where Supreme Court has given कि FTS की बात होती है कि that has to be provided in India, technical services. अगर एक आदमी सर मैं सिंगापुर में रख रहा हूं सैलरी पे, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं सैलरी पे, एंड ही इज जनरेटिंग लीड्स फॉर मी in Singapore. He is generating leads for me in. What will be the taxability of that salary? My question is clear, na? Huh? I am a company in India. I have got an employee in Singapore. He is generating sales leads for me in Singapore. What should be the taxation of that salary in India? बहुत कॉमन सिनेरियो, इसका ग्लोबल प्रेजेंस ये तो होगा सर, होगा ही. कैसे, क्या टैक्सेबिलिटी होगी? 192 में काट दो 12 लाख के हिसाब से. प्राइमा फेसाई तो यही आएगा. प्राइमा फेसाई यही आएगा सर. क्या होना चाहिए? How does it matter? Income is arising from India. तो फिर यहीं पे taxable रहेगा. आप बताइए. I am being the devil's advocate and I am representing Singaporean resident. I am saying, look sir, I am a resident of Singapore. I am providing my services in Singapore. I am generating your leads in Singapore. Let's go and visit DTAA. डिपेंडेंट सर्विसेज में चलते हैं सर, अपने पढ़ते हैं सैलरी का टैक्सेशन क्या DTAA में, बहुत क्लियर है. कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, वहाँ का रेसिडेंट है, वो वहाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर टैक्सेशन क्या होगा? वहाँ होगा. यहाँ पे आप टैक्स उस पर नहीं काट सकते. तो थोड़ा सा ट्रिकी है सर. मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एक्ट. वेन एवर थिंग्स लुक सिंपल एंड प्लेन, it's never that simple and plain, and that is why I always say कि our honorable FM and bureaucrats have tried their best to simplify in this new income tax act, but unfortunately हो नहीं पाएगा. करने भी नहीं देंगे, हो भी नहीं पाएगा. TDS एप्लीकेबल नहीं है ना सर. TDS काट, पहले सर समझते हैं इस केस में. We have to be very wise with our words. It is not so that we have not deducted TDS. TDS is not applicable. TDS is not applicable. Correct है ना? So yes. सर्विस इंडस्ट्री सपोज कोई एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं और उसके लिए लीड जनरेट कर रहा है यूट्यूब. 3 lakhs SEP, significant economic presence. 3 lakhs data, 2 crore का रेवेन्यू. SEP है सर. SEP रूल 10 UB में डिफाइंड है, थ्रेशोल्ड लिमिट. और कोई सवाल सर? इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग कभी डीप डाइव नहीं करते हैं टॉपिक्स में, क्योंकि प्राइमा फेसाई लगता है कि ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो हो रहा है. व्हाट इज न्यू इन दिस? एंड आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग न्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से इट वेरी लाउड एंड क्लियर दैट I have not said anything which is new as far as this new Income Tax Act 2025 is concerned. ऐसा कुछ नहीं है जो अच्छा ये अभी आया क्या? नहीं सर, ये सब था, उसको उन्होंने फिर से रीड्राफ्ट किया है, सिंपल एंड ल्यूसिड. बट आई थॉट दैट इन माई हम्बल सबमिशन दीज पॉइंट्स शुड बी हाईलाइटेड. नहीं तो बाकी सब तो देखिए सर, जो है उसमें भी है, इसमें भी है. रूल्स भी अभी तक एप्लीकेबल, उसके रूल्स भी आएंगे, सेम ही रहेंगे. कमिंग टू दी GAR provisions.
जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। सर गार का जो कॉन्सेप्ट है यह डिपार्टमेंट के लिए ब्रह्मास्त्र है। एक एग्जांपल है, तेलंगाना ने जो जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट के फेवर में दिया था 7 जून 2024 में। दिस वाज अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला वर्सेस पीसीआईटी सेंट्रल। इसमें क्या हुआ था, बोनस ट्रिपिंग का मैटर था 94(8). बट जो एसएससी था उसने बोला कि सर बोनस ट्रिपिंग आप अप्लाई कैसे करोगे, मेरा वो 3 महीने वाला ना ड्यूरेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आई एम आउट ऑफ द स्कोप ऑफ 94(8). ये सबमिशन आया, बोला हाँ सही बोल रहा है, 94(8) के तो तुम बाहर है, चलो तुमको गार में ले आते हैं। रिट पिटिशन फाइल कर दिया। तो सर ये सबमिशन आप जजमेंट में पढ़ोगे सर, उसने बोला कि आप ये कैसे कर सकते हो, आप गार में कैसे ले जा सकते हो जनरल में, कि मेरा तो स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड लॉ व्हेन देयर इज स्पेसिफिक सेक्शन टू डिसअलाउ, हाउ कैन यू गेट इनटू जनरल सेक्शन। बोला अभी तो आप बोले 94(8) में आप फॉल नहीं कर रहे हैं, आप खुद बोले कि आपके तो सिक्योरिटी नहीं है, आप 3 मंथ्स वाले क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हो, तब तो फिर आप स्पेसिफिक में नहीं है, तो जनरल में ले आए। तो bonus tripping, where the conditions of bonus tripping were not met as per the department submission, they brought them into GAR. तो अब if I stretch this judgment and say कि wherever department could not do anything because of timelines and certain loopholes in that particular section, they can bring everything GAR. GAR क्या है सर? ऐसी कोई भी मना स्थिति जो टैक्स की चोरी के लिए उत्पन्न हो उस पर भी गार लगाया जा सकता है। इट इज अ साइकोलॉजिकल इवेंट। इवन इफ यू थिंक टू इवेट टैक्स, द सोल पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर इज टू इवेट टैक्स। इन दैट केस GAR will be applicable. It has got 4 conditions which talks about a commercial substance की बात करता है, कोई business नहीं है उसमें, misuse or abuse of tax law is there. So if those conditions are met, one is the obtain a tax benefit. Now I'm just इसमें लिखा हुआ है कि GAR के respect में a circular is also there which says कि अगर कोर्ट के थ्रू होता है तब तो गार नहीं लगना चाहिए, कोर्ट के थ्रू होता है तो गार नहीं लगना चाहिए। एंड आई एम ट्राइंग टू रेफर टू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस विथ लॉसेस, गार नहीं लगना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि इफ द टैक्सेशन इज डिस्कस्ड इन द कोर्ट, मतलब एक मैटर ये है तब नहीं लगेगा। तो अगर इस मैटर पे कोई बातचीत नहीं हुई है तो गार अप्लाई हो सकता है। देखिए सर, जिस हिसाब से डिपार्टमेंट एक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं कि मर्चेंट एक्विजिशन जहाँ पे लॉस। सर 8 साल तक तो मिलेगा ही। 8 का मिलेगा, उसके पहले वाला जो पर्ची पहले था ना कि 8 का नहीं, नया तो सर मिलने का सवाल ही नहीं है, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मर्जर जहां पे सिनर्जी के नाम पे कुछ नहीं है। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज दैट इज सर वही मैं बोल रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंट पॉइंट सर। वो तो बहुत बेसिक पॉइंट है कि 8 साल चलेगा, 4 साल वहां है तो 4 साल यहाँ जो बचेगा वही चलेगा, इस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ प्लानिंग थोड़ी हाई लेवल की। लॉस, एक एंटिटी के पास लॉस था, उस एंटिटी को मर्ज किया गया, उसके लॉस को कंज्यूम करने के लिए आपने सिनर्जी एनर्जी दिखाई, जो भी दिखा सकते थे, बट दैट वाज ओनली ऑन पेपर। एंड इफ डिपार्टमेंट प्रूव्स इट कि द सोल मोटिव ऑफ दिस अरेंजमेंट वाज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट, और इसमें कुछ नहीं है ये सब सिनर्जी एनर्जी, और 2 साल के बाद दिखने लगेगा 3 साल का डेटा आपके कोई सिनर्जी थी नहीं, लॉस कंज्यूम हो रहे हैं सर रैम्पेंट, क्या करेंगे? आप तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, एनसीएलटी में बात हुई थी, एनसीएलटी के रेफरेंस से बात हुई है,
वो आप एक बार सर वो डेट भी मेरे पास अभी मेरे पास है, मेरे फ़ोन में सर्कुलर है 2017 का, ये सर्कुलर नंबर 25 है शायद, उसमें उन्होंने दिया है गार के ऊपर एक मात्र सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोर्ट में अगर डिस्कस हुई है तो ठीक है, नहीं डिस्कस हुई है तो गार प्रोविजंस कैन बी इन्वोक्ड. Once the NCLT orders are there, then can guard Obviously that is what I am telling sir. I am just telling कि you never know. कोर्ट में अगर टैक्सेशन पे बात नहीं हुई है, कोर्ट में अगर टैक्सेशन का मुद्दा ही नहीं उठा कि इसके लॉसेज हैं, इसको भी बेनिफिट मिलेगा, इफ दिस इज नॉट वन ऑफ द सिनर्जीज, आपने उसको हाईलाइट नहीं किया तो बोलेंगे इस पर तो बात नहीं हुई, इसको तो आपने इंटेंशनली छिपा लिया. यू कंसील्ड इट, मेंस रिया विल ट्रिगर. और उस पूरे अरेंजमेंट में कोई सिनर्जी क्रिएट नहीं हुई. आपके जो फोरकास्ट थे सर अभी तक मीट नहीं किए. कहां से मीट करेगा सर, ये तो हम सबको भी पता है. आज तक कोई मर्जर का फोरकास्ट मीट हुआ है सर? कोई मर्जर एक्विजिशन का फोरकास्ट मीट हुआ है क्या? तो अल्टीमेटली तो लॉस था, तो गार क्यों नहीं अप्लाई करें? नहीं, मेरा मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि डिपार्टमेंट को जाके हम समझाएंगे, हम लोग बात करेंगे, ऐसी बात नहीं. मैं बस बता रहा हूं कि दिस इज अ पर्सपेक्टिव. So everything which is done with the intent to obtain tax benefit and which does not have business rationale in it, it can be questioned under GAR. एक बेनिफिट है बहुत छोटे लोगों के लिए, टैक्स इंपैक्ट शुड बी 3 करोड़. 3 करोड़ से नीचे अगर टैक्स इंपैक्ट है तो गार अप्लाई नहीं होगा. सर उतना तो रिलीफ देना ही पड़ेगा. तो ये लिमिट कब आई थी सर? तो जब गार आया था तब ये रूल में है सर, रूल 10 यू ए. हाँ, तो आपको थोड़ा वो बोली इसको सर, बाकी जैसे 4 का 12 किया तो ये भी 10 हो जाए तो 50 करोड़ सर आपके दुबई के लिए कर दिया ना सर, उसमें खुश रहिए. क्या इधर आप गारवार में जा रहे हैं, वहाँ 9% है, यहाँ 40% है चेन्नई के लिए सर. कंपनी करके वहाँ भी डंप कर सकता है. दुबई का बहुत हो रहा है सर. तो प्लानिंग सही होनी चाहिए. आई थिंक इट इज डूएबल. टर्नओवर आजकल नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल हो गया. ये तो मल्टीपल एंटिटीज बनेगी ना. हाँ वही, अब सब कुछ अभी आप मतलब सेमिनार में ठीक है. सो दीज वर फ्यू थिंग्स एंड वी कैन हैव डिस्कशंस आल्सो. टॉपिक्स थोड़े ट्रिकी थे एंड DTAA, गार, रेसिडेंसी, पोएम, सेक्शन 9, everything is interrelated and we cannot read it in isolation, any topic, because everything has an effect on the other thing. If you'll talk about residency, then poem comes into play. We have active business outside India ka concept. Then DTAA will also come into play if poem is there. Deemed income is completely about DTAA. Without DTAA, it is incomplete. GAR में भी आपके GAR will override DTAA in fact. एक concept होता है which is called PPT, Principal Purpose Test, और एक concept होता है LOB, Limitation of Benefit. तो PPT में क्या होता है कि even DTAA will cease to apply if the sole purpose of DTAA is to obtain tax benefit. अगर कोई बिजनेस सेंस नहीं है, आप सिर्फ वो सारा कारनामा जो कर रहे हो सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो इवन DTAA विल बैक आउट. दैट इज द प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. एंड लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज इज ऑल्सो देयर. आई टेल यू अ क्लासिक DTAA विथ सिंगापुर वेयर इट टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट एज वेल एंड लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट एज वेल, जो बोलती है कि आपकी बिजनेसेस दिखनी चाहिए कि बिजनेस हो रहा है. इट शुड नॉट बी अ शेल कंपनी और पेपर कंपनी और शैम ट्रांजैक्शन. So we had a MLI, I guess in 2020 with Singapore, where it considered and brought into this concept of limitation of benefit, especially with capital gains and all. So ये topics थे sir. House is open for further questions also. सर दो चीज में थोड़ा सा Yes sir, बोलिए ना. नंबर ऑफ पर्सन अभी जो है जॉब के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक इन्वेस्टमेंट दुबई में काफी हो रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो इसमें थोड़ा सा फोकस. सर जो लोग आ रहे जा रहे हैं वो एक केस स्पेसिफिक एनालिसिस है, उनकी पासपोर्ट्स मंगवाइए. वो गाइडेंस क्या दिया है कि नहीं इसमें सर एक कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया वर्ड यूज किया सेक्शन 6 में. सो लेट अस नॉट गेट मिसलेड बाय दिस वर्ड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एंड इट हैज बीन वेल एस्टैब्लिश्ड in different judicial precedents कि even if a person is going with the intent to start his own business, then also he'll be considered as employment outside India. ऐसी बात नहीं है कि उसके पास एक जॉब की लेटर होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तभी कहलाएगा वो.
तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया में सर अगर कोई जा रहा है व्यक्ति, तो यू शुड नो एंड यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट द पासपोर्ट ऑफ दैट पर्सन एंड सी कि वो कितने दिन इंडिया में रहा. अगर वो इंडिया में सर कितने दिन रहना चाहिए आपके अनुसार? सर तो 182 और 60 डेज अगर जब जनवरी में नया है तो रेसिडेंट इंडिया रहेगा हमेशा. यस, इंडिया ही रहेगा सर. और कैसे रहेगा, और नेक्स्ट ईयर का भी अगर 60 के ऊपर हो गया तब भी रेसिडेंट इंडिया रहेगा. अगर 60 के ऊपर रह गया तो हाँ तब भी रहेगा सेकंड ईयर भी. अपने तो एनआरई करके फाइल सर 60 डेज को एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया में कितना रीड करते हैं? कितना रीड करते हैं? जॉब में यस सर. तो बोले ना 60 माना जाएगा. नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया पे तो हम बात ही नहीं की. एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की है. एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया में 60 डेज को कितना रीड करेंगे हम लोग? 182 डेज, 6 महीने सर. जॉब में 182 डेज. 182 डेज. एक और कॉन्सेप्ट आएगा सर आपके पास, जो मर्चेंट नेवी में लोग रहते हैं. मर्चेंट नेवी का तो प्रॉब्लम है. मर्चेंट नेवी का रहता है, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट होता है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, उसका ध्यान रखना होता है. एंड फॉरेन बाउंड शिप का ध्यान रखना होता है. ये सब की टर्म्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा. ओनली देन यू कैन डिसाइड द टैक्सेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. माने जॉब में अगर इंडिया से जा रहा है बाहर Yes, sir. 188 माना जाएगा. 182 डेज अगर है. 182 अगर यहाँ पर रहा करेक्ट है सर. तो रेसिडेंट. और इसमें एक और पॉइंट ऑफ, और नेक्स्ट ईयर में से 182 रहेगा जो 60 का है. पॉइंट नंबर 2 वो अगेन डिपेंड करेगा सर क्या सर्कमस्टांसेस है. मतलब इंडियन कंपनी एक बार भेजेगी. केस ट्रिगर वैसे ही करेगा कि वो इंडिया में कितना था पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए और बाहर में कितना था. 60 का 182 only वो हर बार हर एवरी ईयर स्पेसिफिक. करेक्ट. रेसिडेंसी तो सर हर ईयर एस्टेब्लिश करना पड़ता है ना. और मुझे 60 डेज एंड 365 डेज था. वो 60 तो 182 पड़ेगा सर, उसी को तो आप पढ़ेंगे 182. नया में भी यही है ना सर. करेक्ट. नॉन रेसिडेंट्स, और आते समय जो लास्ट ईयर जब आते हैं वो लोग तो वो उसी की बात मैं कर रहा था कि जो नॉन रेसिडेंट्स जब इंडिया आते हैं तो वो सर RNOR रहते हैं. इस बात का ध्यान रखेंगे कि वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड कॉशियस अबाउट द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज स्टे, क्योंकि जो एडिशनल कंडीशंस हैं वो ट्रिगर करेंगे. 2 आउट ऑफ 10 years and 730 days. वापस जो आता है उसको तो 182 होगा नहीं सर. सर तभी तो बोल रहे हैं. नहीं, पहले साल की तो बात ही छोड़ देते हैं. जब वो वापस जब नेक्स्ट ईयर, सपोज इन दिस, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, आई वॉज अ रेसिडेंट इन कैनेडा. आई केम टू इंडिया जस्ट नाउ. अभी दिसंबर चल रहा है, मैं दिसंबर से इंडिया में हूं. इस साल तो चलो आई विल बी ए नॉन रेसिडेंट. इस साल आई विल बी ए नॉन रेसिडेंट बिकॉज आई वॉज इन कैनेडा. लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट ईयर. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सर. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हाँ, तो 60 डेज ऑफ इंडिया में है. 120 डेज देखेंगे ना सर. जॉब छोड़ के बाद आया. तो क्या हुआ सर, 120 डेज तो रहेगा ना. 120 डेज 120 डेज. 120 डेज तो काउंट करेंगे ना. अब माई क्वेश्चन टू यू इज कि आई एम अ नॉन रेसिडेंट, आई केम टू इंडिया जस्ट नाउ, आई प्लान्स टू स्टे इन इंडिया, एंड what should be my residential status for financial year 26-27? Because previous years. अब ये एग्जामिन करना पड़ता है सर, ये इतना आसान नहीं है. इसके लिए पासपोर्ट लेके बैठना पड़ता है. 730 days, 7 years. तो ये दिस वॉज द पॉइंट आई वॉन्टेड टू मेक कि व्हेन अ NRI बिकम्स अ रेसिडेंट, तो फिर आप इतना सिंपली चीज़ों को मत देखिए. इसके बहुत बेनिफिट्स हैं. क्या बेनिफिट्स हैं मैं बताता हूँ. आई हैव फ्यू क्लाइंट्स, उसकी जो NRE अकाउंट की FD है सर, RNOR में टैक्स नहीं लगता. NRE अकाउंट की FD पे RNOR के टैक्स नहीं लगता. तो there are several aspects to the taxation of RNOR, and this is one of them. So you find out first of all whether person, if is returning to India after a long gap, what is the residential status for that particular year. Take out his passport and count the number of days. See whether all the first two conditions and the additional conditions of 2 years and 2 out of 10 and 730 days out of 7 years are satisfied or not. If he falls in the as a RNOR residential status, then his each income will be taxed in a different way, and that also has to be studied.
have one question. Yes, sir. If a person becomes an LRA, Mm-hmm. is there anything in the Income Tax Act or maybe anywhere else, I'm not aware of, Yes, sir. that he needs to change his bank, the status in his इन bank account? इमीडिएटली सर, इमीडिएटली. अब एग्जाम्पल क्यों सर, आप पूछे क्यों? आपके लिए इंटरेस्ट ऑन एफडी पे क्या टीडीएस कटता है? बोलिए 194A में. 10%. एनआरआई के लिए क्या पे कटेगा? क्या आपको लगता है कि उचित नहीं है बताना बैंक को? आप अगर म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो आप पे क्या टीडीएस कटेगा म्यूचुअल फंड पे? Long term, short term, जो भी रहे, अगर जो भी है उसका. और अगर एनआरआई रहा तो 20% तो कटेगा ही कटेगा सर, है ना? तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये तो सर फर्स्ट ईयर जाएगा तो उसके बाद नहीं, और अगर खाली सेविंग्स अकाउंट ही है, कोई इंटरेस्ट एफडी वेफडी नहीं है. नहीं, देखिए, इट इज अगेन अबाउट यू आर हियर टू डिस्क्लोज द करेक्ट इंफॉर्मेशन टू that द is true, अथॉरिटी. that is आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. मतलब इट इज, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, मतलब दिस शुड नॉट बी अ क्वेश्चन कि भाई आप अपने स्टेटस को डिस्क्लोज मत करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन दैट इज नॉट, शुड नॉट हैपन. जो करने का है एनआरए अभी गया जब वो जो गया है जॉब पे 182 डेज के ऊपर वो तब डिस्कस होगा, उसके पहले तो करने की है. वो सब टाइम ले लीजिए सर. सर नहीं तो वो तो जब आपका रेसिडेंसी चेंज होगा उसके बाद आपको करना है. अब वो बाहर है. ये अब सब वो तो आए सर, नहीं. ये सब तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं सर. हम ये बोल रहे हैं कि अब ये सब चीज़ पुरानी बात हो गई, सब हो चुका है ये सब. अब सवाल आ रहा है कि कर क्या? इमीडिएटली करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए. एनआरई और एनआरओ दोनों दो अकाउंट की जगह नहीं है. NRE फिर एनआरई कहाँ रहा सर? फिर तो एनआरई जब तक कुछ सर्टेन पीरियड के लिए अलाउ करता है, उसके बाद तो एनआरई के लिए आप एलिजिबल नहीं है. हाँ, पे एनआरई कैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो वापस आ चुका है उसके लिए. वापस ही जो गया वो तो NRE हाँ ठीक है, वो तो अलग है. एनआरओ एनआरई रहेगा, वो तो रहेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है. एनआरई से भी सर कई दिन देखते हम ट्रांजिशन कर रहे हैं इंडिया में, बट खाली एनआरओ होना चाहिए. वो एनआरई से भी पेमेंट जा रहा है. कर तो रहे हैं सर, बहुत कुछ लोग कर रहे हैं. कानून का पता नहीं है, कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं, तो उस पर वी कैन नॉट कमेंट. सर आएगा खाली एनआरई में आएगा, वो भी एनआरओ या Those things are happening, sir. And if you come across such transactions, please make sure कि correct entries हो. And एनआरई से तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं. नहीं. invest कर सकते हैं, बहुत restricted investments है. You have to disclose your residential status properly. कर तो सकते हाँ, हैं वही आप. मैं कर एनआरओ होना चाहिए इंडिया में जो तुम काम नहीं, जब मैं फॉरेन करेंसी में अकाउंट होल्ड करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट भी करूंगा. NRE भी दो तरह का होता है, NRE फॉरेन करेंसी होता foreign है, currency INR. होता है. तो आप कर सकते हैं. अब अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि आई हैव गिवन गिफ्ट टू अ पर्सन रिसाइडिंग इन US who is not my relative. What is the taxation of that? यूएस में पैसा दिया. गिफ्ट दे दिया मैंने. मेरा तो कैपिटल टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या मतलब है? कोई दिक्कत नहीं. अरे सर, यहाँ पे कहानी थोड़ी खत्म. TDS का. इंडिया में तो टैक्स लगेगा. Revenue tax. इंडिया में टैक्स नहीं. क्या होना चाहिए सर? Section 9 is the culprit. It is taxed, taxable in India. Section 9 में बहुत स्पेसिफिक है, नए वाले सेक्शन में भी है. जो पैसा हम दे रहे हैं अक्रू. उसके हैंड्स में टैक्सेबल है. उसके हैंड में हमारे Source rule will trigger. Source rule will trigger, and it is taxable in India. So जो भी whatever common sections and common provisions were there, which I found to be relevant for the August gathering, I discussed it, and we can still discuss if anything is there. Else, thanks for giving me patient hearing. Thank you. Thanks a lot.